Good morning, children. Today we are going to learn about our chapter number 11 and very interesting story. Nico draws cats which are as clever as mice. You know? So, from your English first book, English course book, chapter number 11, and our title is Nico draws cats. This is a very beautiful and interesting story and comic story. Comic means picture stories. Okay, so this is a story written by Jayashree Menon. Okay, and this is a picture story. Look here. So why do some people use only pictures? Because of picture stories are very interesting, है ना? So and very beautiful. So many people like pictures story. Okay. So writer of this story Jayashree Menon and Sarang Banot. So Jayashree Menon is from Kochi, Kerala. Jayashree Menon from Kochi, Kerala की रहने वाली है. She has worked as a reporter, as an editor for many Indian newspapers, and now writes a story and comic for children. So, writer of the story is Jayashree Menon and live in Kochi, Kerala. Okay, and she could as a reporter and an editor, but now she's writing a story for children, writing a comic story for children, you know, for kids like you. Jayashree always tried to speak up for animals' rights. She loves reading and wants to share the joy of reading with young children through her work. So, Jayashree Menon now, she writing a story for children, and so she found animals and she tried to speak for animals' right. Okay. Sarang Banot, the illustrator, studied design at Srishti School of Art, Design and Technology, Bangalore. Illustrator means चित्रकार, जो पिक्चर्स बनाते हैं ना उनको हम illustrator कहते हैं ना. सारंग बैनोट वो भी illustrator है ना. He loves illustrating and making animations particularly for children. Animations means ऐसी pictures जो लाइव हो, हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है वो पिक्चर्स हमसे बातें कर रही है ना. सो ऐसी पिक्चर्स को हम कैसे इलस्ट्रेटिंग जो होती है ना, एनिमेशंस बोलते हैं, पर्टिकुलर फॉर चिल्ड्रन के लिए ये लोग बनाते थे, है ना. सो दिस स्टोरी ऑल अबाउट अ नॉटी बॉय एंड नेम निको. ओके. So my dear children, Nico Draws Cats is about a small boy who lived drawing cats. He only drew cats whenever he went and did not want to do anything else. Turn the book around to read the comic. So it is like a comic book story and it is all about pictures story, है ना. I will explain the story with the help of pictures. Okay, a story about a boy who loved to draw cats. Okay, a boy named Nico and lived Japan, a village, in a small village of Japan. जापान कंट्री है, उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर ये निको रहता है. ओके, सो लेट्स बिगिन a story. How became an artist. How Nico became an artist. Okay. Long time ago, बहुत समय पहले की बात है, in a small village of Japan. जापान का एक small village था. There lived a naughty little boy. वहाँ पर कौन रहता था? Naughty little boy, बदमाश छोटा सा बच्चा रहता था. His name was Nico. उसका नाम क्या था? Nico. Okay. Oh, Nico, you must stop drawing cats. How will
become a farmer like me. He is Nico's father. Okay? Oh Nico, you must stop drawing cats. तुम cats को draw करना stop करना चाहिए तुम्हें. How will become a farmer like me? मेरे जैसा farmer कैसे बनेगा? Okay? Father ने Nico को बोला. At the temple, the priest gave him a box of wooden tools. Brush, ink and rice paper. He taught him to read and write. At the temple, the priest gave him a box of wooden tools. उसके जो पापा थे उसने उसको टेम्पल के वहाँ पर भेजा. वहाँ पर कौन था? प्रिस्ट मीन्स जो पंडित पुरोहित साधु होते हैं ना मंदिर के अंदर, उनको हम प्रेस्ट बोलते हैं. ओके. गैव हिम अ बुक ऑफ वुडन टूल्स. उसने एक वुडन टूल्स में से एक बॉक्स के अंदर से टूल्स निकाले. क्या क्या था उसके अंदर? वुडन मीन्स लकड़ी के बॉक्स के अंदर से क्या निकाला? ब्रश, इंक एंड राइस पेपर. राइस पेपर मीन्स टाइप ऑफ पेपर. राइस पेपर मीन्स टाइप ऑफ पेपर. एक ऐसा जो पुराने ज़माने में ऐसे ही पेपर चलते थे, उनको हम बोलते थे राइस पेपर, है ना. तो उस बॉक्स के अंदर से ब्रश, इंक और राइस पेपर निकाला. ही टॉट हिम टू रीड एंड राइट. उसने उसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ये सब दिया. ओके. सो नेक्स्ट, बट निको, ओह नो, ही डिडंट लर्न टू रीड और राइट. कैन यू गेस व्हाट ही डिड? वो ना तो लिखना चाहता था ना पढ़ना चाहता था. ना लिखना चाहता था ना पढ़ना चाहता था. यस. Can you guess? Yes. With his ink brush, he began at once to draw cats. उसने उस इंक ब्रश, जो उस टूल्स के अंदर जो ब्रश, इंक और राइस पेपर था ना, उसने उसमें से ब्रश निकाला, इंक में करा. उसने इंक के अंदर ब्रश को डुबोया और उसने उन पेपर्स के ऊपर क्या किया? कैट्स को ड्रॉ कर दिया. एट वंस टू ड्रॉ कैट्स. ओके. बहुत सारी कैट्स. Soon he forgot about his writing and his paper finished. Forgot means भूल जाना, है ना. So जल्दी ही वो भूल गया और उसने कि his writing and his paper finished. उसको writing भी करना था लेकिन उसके पेपर finished हो गए थे. क्यों? He looked around. उसने उस पेपर्स पे क्या बनाया था? उसके पेपर फिनिश हो गए थे सारे. उसने सब पेपर्स के ऊपर कैट को ड्रॉ किया था. He looked around and saw the empty sliding screen डोर्स ऑफ द टेम्पल. उसने चारों तरफ देखा तो उसको जो वहाँ पर ऐसी वॉल्स थी, वहाँ पर स्लाइडिंग वाली वॉल्स थी जो खाली थी, है ना, उसको नज़र आई वहाँ पर. विदाउट अनदर थॉट ही ड्रू मोर कैट्स, फैट वंस, जंपिंग वंस, स्लीपिंग वंस. उसने बिना कुछ सोचे और उस वॉल पर, स्लाइडिंग वॉल्स पर कैट्स, बहुत सारी कैट्स ड्रॉ कर दी. ओके. ओह निको, यू विल नॉट बिकम अ प्रिस्ट. आई विल हैव टू सेंड यू होम. और जैसे ही प्रिस्ट आया वहाँ और प्रिस्ट ने देखा, बोला ओह निको, यू विल नॉट बिकम अ प्रिस्ट. तुम प्रिस्ट नहीं बन सकते हो. आई विल हैव टू सेंड यू होम. मैं तुम्हें फिर से घर भेज रहा हूँ. लुक एट द पिक्चर डियर चिल्ड्रन. देखो. सो निको वहाँ से निकल चुका है और वो देख रहा है कि वो अकेला वहाँ से जा रहा है. सो ऑफ ही वेंट. वो वहाँ से चला गया, है ना. सो कैन यू सी द पिक्चर नाउ? पिक्चर हमें बता रही है कि निको वहाँ से चला गया है. सो वेल मे बी आई कैन ट्राई माई लक हियर. आगे जब गया तो उसके वहाँ पर एक टेम्पल, एक और टेम्पल दिखा. तो उसने सोचा कि मैं अपना लक यहाँ पर ट्राई करता हूँ. माई लक हियर. क्या पता मेरा लक यहाँ पर हो, है ना. सो वो अंदर गया, एंटर हुआ. वेयर इज एवरीवन? वेयर इज एवरीवन? उसने पूछा. बट नोबडी इज देयर. ओके. एंड टेम्पल वॉज एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली था टेम्पल. एंड नोबडी इज देयर. वेयर इज एवरीवन? सब जने कहाँ हैं? उसने सोचा. बट नोबडी इज देयर. ओके. सो he dipped his brush into the ink that was as black as the night. Then he began to draw, है ना. तो वो वहाँ पर बैठा और उसने अपना ब्रश निकाला, डिप किया और कौन से कलर से? उसने वहाँ पर ब्लैक जैसा कलर, डार्क कलर लिया, डिप किया एंड देन ही बिगैन टू ड्रॉ. और उसने वहाँ पर भी कैट्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया.
Yes. Please see the page. So many cats ना jumping, raw, है ना, dancing. और उसने वहाँ पर ड्रॉ कर दिया कैट. किसने किया? निको ने, है ना. ओके. बाय द टाइम ही वॉज फिनिश्ड ही वॉज वेरी टायर्ड. उसने थोड़ी देर बाद अपना ये सब ड्रॉ करना फिनिश किया और वो बहुत थक गया था. ही वॉन्टेड टू ले डाउन. उसको आराम करना था, उसको लेटना था, है ना, उसको आराम करना था. वो चाहता था आराम करना बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी टायर्ड दैट टाइम, है ना. बट द रूम वॉज टू बिग फॉर हिम एंड समथिंग इन इट मेड हिम स्कैर्ड. और वो जो रूम था ना जहाँ पर वो था वो बहुत ज़्यादा बिग था और वहाँ पर उसको कुछ ऐसा स्कैर्ड मीन्स डरना, है ना, वो डर गया. ऐसा कुछ चीज़ हो रही थी वहाँ पर जो उसको डरा रही थी, है ना. लेटर दैट नाइट निको वॉक अप विथ अ जॉल्ट, है ना. जॉल्ट मीन्स एकदम झटके से वह उठा, एकदम से उसको झटके से उठा. लेटर दैट नाइट निको, थोड़ी देर बाद जब रात हुई, रात को वो एकदम झटके से उठा. वॉक अप विथ अ जॉल्ट, एकदम झटके से उठना. समथिंग वॉज क्रॉवलिंग इनसाइड द बिग रूम. उसने क्या देखा कि कुछ ऐसा था. क्रॉवलिंग मीन्स रेंगना, है ना. तो उसको ऐसा लगा कि कुछ तो है, समथिंग अंदर की तरफ कुछ रेंगता हुआ आ रहा है ना. समथिंग वॉज क्रॉवलिंग इनसाइड द बिग रूम. इट सीम्ड बिग एंड मेड स्कैरी साउंड्स. ओके. सो वो ऐसा उसको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि बहुत बड़ा कुछ है जो ऐसे साउंड्स बना रहा है ना. तो ऐसा क्या है वहाँ पर, ऐसा क्या था उस रूम के अंदर जो रेंगता हुआ आ रहा था और एकदम डरावनी आवाज़ थी उसकी. दैट्स वाई नोबडी लिव इन द टेम्पल. यही बात थी जो इस टेम्पल के अंदर कोई नहीं रहता था क्योंकि वहाँ हर रात को ऐसी डरावनी आवाज़ आती थी, है ना. इट वॉज दैट बिग थिंग्स हाउस. ओके. सो आई विल स्लीप हियर. निको यहाँ पर सो गया था. उसके बाद में ये सारी कंडीशन हुई. झटके से उठ गया. उसने देखा कि कुछ क्रॉवलिंग करता हुआ अंदर आ रहा है, डरावनी आवाज़ें आ रही है ना. सो नेक्स्ट द साउंड कैम अगेन एंड दिस टाइम क्लोजर टू हिज रूम. फिर से ऐसा साउंड आया और ऐसा लगा कि निको के पास में आ चुका है वो बहुत, है ना. शी श्रैंक टू अ कॉर्नर, है ना. वह निको जो था ना, श्रैंक मीन्स सिकुड़ना, है ना, एक दुबक जाना. वह एक कॉर्नर के वहाँ पर सिकुड़ गया, दुबक गया. देन सडनली ही हियर्ड समथिंग एल्स. और उसने एकदम अचानक उसने कुछ ऐसा सुना, है ना. अब क्या सुना देखते हैं हम. इट वॉज ऑल वाइट आफ्टर दैट. थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया. इट वॉज ऑल क्वाइट आफ्टर दैट. निको विश्ड ही वॉज एट होम. निको ने क्या सोचा, काश मैं अपने घर पर ही होता. ही वेटेड फॉर डे ब्रेक सो ही कुड लीव. उसने डे ब्रेक मीन्स सुबह का इंतज़ार करना. उसने सुबह का इंतज़ार किया. सो ही कुड लीव, ताकि वो यहाँ से जा सके. लीव मीन्स छोड़ना, चले जाना, है ना. सो एट लास्ट डाउन कैम. फिर से सुबह हुई. ही स्लिप्ड आउट फ्रॉम द बिग रूम एंड देयर ही सॉ इट, द मॉन्स्टर ऑफ द नाइट, द बिगेस्ट रैट यू एवर सॉ. इट ली डेड. जब वो उठा तो उसने देखा, क्या देखा, उस बिग रूम की वहाँ पर क्या था. एट द नाइट जो डरावनी चीज़ें हो रही थी ना रात में, तो जब वो मॉर्निंग में जब उठा ना तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा रेट, है ना, चूहा बहुत बड़ा जो उसने कभी नहीं देखा था वहाँ पर पड़ा हुआ था. और कैसा, मरा हुआ, है ना, मरा हुआ. ओके. सो निको सेड इट वॉज यू हु सेव्ड मी. निको ने क्या कहा, मुझे सेव किया है, थैंक यू. किन्होंने किया था. आई नो नाउ दैट एज लॉन्ग आई लिव आई विल नॉट स्टॉप ड्रॉइंग कैट्स. आपको पता है कैट्स जो होती है ना, तो जो रैट्स होते हैं ना, माइस होते हैं ना, रैट्स होते हैं ना, माइस होते हैं ना, तो माइस किससे डरते हैं, हमारे रैट्स कैसे डरते हैं, कैट्स से. तो निको ने वहाँ पर बहुत सारी कैट्स ड्रॉ करी थी ना उस टेम्पल के अंदर.
तो जब नाइट में जब वो रैट वहाँ पर आया ना, तो मे बी है ना ऐसा ही हुआ था ना कि वो उनको उन रैट्स को उन कैट्स को देख के वो डेड हो गया, वो मर गया। तो निको ने क्या बोला कि ये बहुत अच्छा हुआ है ना, थैंक यू, आई नो नाउ दैट इज़ लॉन्ग, है ना, आई विल नॉट स्टॉप ड्राइंग कैट्स, मैं कभी नहीं बंद करूँगा कैट्स को ड्रॉ करना, क्योंकि आज मुझे बचाया है, मुझे किसने सेव रखा है, कैट्स ने, है ना। सो व्हेन द विलेजर्स हियर्ड अबाउट द मॉन्स्टर रैट दे प्रेज्ड निको, जब विलेजर्स वहाँ पर आए उन्होंने सुना ऐसा, और मॉन्स्टर दे प्रेज्ड निको, मॉन्स्टर रैट जो था ना, जो रात को वो जो डेड हो गया था, तो वो बहुत खुशी और उन्होंने निको को बहुत अच्छा बोला। दैट्स हाउ निको बिकेम, उन्होंने उनकी तारीफ करी निको की, है ना, विलेजर्स ने। दैट्स हाउ निको बिकेम व्हाट ही वांटेड। ओके, अब वो वह बनना चाहता था, वो जो वो चाहता था वो वह बना, है ना। नॉट अ फार्मर, फार्मर नहीं बना, है ना। नॉट अ प्रिस्ट, वो प्रिस्ट भी नहीं बना, बट एन आर्टिस्ट हु ड्रू ओनली यस कैट्स, और वो ऐसा आर्टिस्ट बना जो वह बनना चाहता था। कैसा आर्टिस्ट बना, सिर्फ और सिर्फ कैट्स ड्रॉ करने वाला। आई विल कीप ऑन ड्राइंग कैट्स, उसने क्या बोला, आई विल कीप ऑन ड्राइंग कैट्स, मैं हमेशा कैट्स ड्रॉ करूँगा। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ निको, हाउ ही बिकेम एन आर्टिस्ट। ओके, so my dear students, now what is the moral of the story? Okay, yes, the moral of the story is we should always follow our heart, है ना, our hobbies, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जिसमें हमारी खुशी है, हमें वो ही करना चाहिए, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए जो हमारा हार्ट बोलता है, जो हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारी हॉबीज़ होती है ना, हमें उसी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ओके।